that the Fit India movement has involved and how our policy is moving towards the same. I request our dignitaries to kindly join us back on stage. And I will now request Secretary Sports Shri Hari Ranjan Rao to kindly come forward and welcome the audience. National Fitness and Wellness Conclave में आज such conclaves we have had in recent times. The first two were in Delhi. We started with Khelo Bharat Conclave, where we discussed the prospects of rolling out of Khelo Bharat Niti, the national sports policy for India, which was approved by the Union Cabinet in the month of July. And we discussed about how to take it forward and how to bring sports to the next level in coming decades. The second conclave was on the sports goods manufacturing and its prospects for the Indian industry. This third conclave here in Delhi, in Mumbai today, is a natural consequence of first two. And as they say that a sound body and a sound mind, only a fit person can realize her dreams. So fitness is now a way of life, and it is the government's endeavor to make the youth of today fit in all aspects. Honorable Prime Minister of India has a dream to make India a global force. We want to see Vikasit Bharat by 2047. And without a human resource which is fit to be part of the country, we cannot dream big. So naturally, it's an endeavor for all of us to fulfill the dreams and make the Fit India mission a success. But let me also share with you that fitness is nothing new in India. Our Indian traditional ways of living, fitness was part of it. In fact, when I used to go in my childhood on a bicycle to go to the nearest kirana shop to fetch the daily needs, when my father used to take me on a bicycle for getting the vegetables from the market, it was a norm. ये unusual नहीं था. अभी आज मुंबई में अगर कोई साइकिल पे सब्जी लेने जाएगा, रोहित शेट्टी जी अगर बोलेंगे कि आज मैं घर के लिए कुछ सामान साइकिल पे लेके आना हो तो न्यूज़ बन जाएगी. He will make waves, news, very encouraging. But let's think about it. Living a life which is making our body work harder, shouldn't it be the norm? Why should it be a matter of great status? Why should it be effort to be made for doing that? हमारे दादा दादी के ज़माने में या नाना नानी के ज़माने में हमारे घरों में घर में जब हमारी माँ हमारी दादी पोछा लगाती थी तो was that not also an effort towards fitness? My only humble request today is that our daily routine activities which lead to fitness, we need to also provide those activities a sense of pride. We should do things with a great sense of pride rather than only going to gym and then concluding that now we have started on a fitness regime. I am saying this because I see this all around myself, and I am also one of the victims of this change of mindset. In the modern world, fitness is synonymous with a lot of things. Equipment and support system are also two such elements in the wellness spectrum. Today in this conclave, we also have a lot of friends from the fitness industry. Youth today go to the gyms and they really want to build their bodies and they want to be fit. But I also want to use this opportunity to sound a small warning that many of the younger generation are not aware
that large number of supplements that are being offered to them or suggested to them by spurious manufacturers is leading to ruining their career, ruining their life, and ruining their body. I want to just mention a small initiative that Honorable Minister has taken, that recently, with the help of Food Safety and Standard Authority of India, FSSI, 2 laboratories in India, one in National Forensic Science University, Gujarat, and another one in Naipur, Hyderabad, have been authorized to give certification for nutritional supplements, whether they are containing any prohibited substance or not. My appeal today through this forum to all the gym owners and gym trainers is to ensure that when you recommend a food nutritional supplement to your trainees and your gym practitioners, please do ensure that those products are certified and they do not contain anything which is prohibited substance. I welcome all the industry experts today to share your views and how the government can streamline or fine-tune the existing systems and policies to achieve our goals. I once again welcome you all to this conclave and thank you very much for being here and for your patience. Thank you. जी और यहाँ पे उपस्थित सभी मान्यवरों का मैं स्वागत करती हूँ नेशनल फिटनेस और वेलनेस कॉन्क्लेव में। और मुझे लगता है कि आज का ये दिन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कॉन्क्लेव के माध्यम से आने वाले सालों में फिटनेस को लेके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं या इस मिशन को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। फिटनेस हमारे देश की एक पहचान है और फिटनेस का कल्चर हमें घर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर आज हमें डिस्कशन करना है। और उसके साथ ही जो भी अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट्स में आने वाले 10 सालों में है उसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और आप सभी लोगों का अपने सेक्टर में जो भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे हम सब उसके बारे में बात करेंगे। और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का ओपिनियन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, कि जिसके माध्यम से हम स्पोर्ट्स सेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि काफ़ी आपने आर्टिकल में भी पढ़ा होगा कि हमारा नेशन स्पोर्ट्स में अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही स्पोर्ट्स में जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो इनिशिएटिव हम सब लोगों को मिलकर लेना है, उसके लिए भी हम सभी को काम करना है। आज स्पोर्ट्स में हम देख सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है। स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक स्टार्टअप के माध्यम से हम कैसे काम कर सकते हैं, और फिटनेस एक हमारी रोज़ की रूटीन हम उसको कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमें सभी लोगों को यहाँ पे प्रयास करना है। और इसके लिए आज का ये कॉन्क्लेव काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी से अपेक्षा रखती हूँ कि आप सभी लोग हमारे मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहेंगे और आपकी तरफ से भी ये प्रायोरिटी पे हम सब जगह पे इसे कैसे लेके जा सकते, इसके लिए आज यहाँ पे आपका रहना और आपके माध्यम से सभी जो सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी भूमिका रहेगी। मैं हमारे आदरणीय यूनियन मिनिस्टर सर का भी बहुत बहुत मन से अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने जो साइकिलिंग मूवमेंट जो चलाया है, आप सभी लोगों को पता होगा कि संडे ऑन साइकिल जो मूवमेंट पिछले 1 साल से मिनिस्ट्री के माध्यम से हम कर रहे पूरे देश में। और आज मुझे बताती हुई खुशी है कि नियर अबाउट 6000 लोकेशन पे हर संडे को साइकिल ऑन संडे हम ये इवेंट करते हैं। तो एक शुरुआत हमारे इंडिया में हो चुकी है फिटनेस को लेके। जैसे सेक्रेटरी सर ने बताया कि आज साइकिल एक ट्रेंड हमें बनाना है, और वो सभी ने अगर हमने शुरुआत की तो इसे धीरे धीरे हम आगे लेके जा सकते। आज साइकिल एक दिखने के लिए एक छोटा सा हमें लगता है, लेकिन उसके माध्यम से फिटनेस का अवेयरनेस हम काफ़ी बड़े पैमाने पर आगे ले जा सकते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं फिटनेस को लेके, हेल्थ को लेके, बिकॉज फिटनेस अगर हमारा अच्छा है, मेंटली फिजिकली हम फिट है, तो डेफिनेटली हम इंडिया को भी ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि आपको अच्छा काम करना है, अच्छे रिजल्ट लाना है, तो पहला आपका मेंटली फिजिकली फिट रहना काफ़ी ज़रूरी है। और इसीलिए हमारा मंत्रालय कोशिश कर रहा है कि इस कैंपेन के माध्यम से हम सभी लोगों को जोड़े और इसे आगे बढ़ाए। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और यहीं पे रुकते हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
Thank you so much, ma'am. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सबको Minister of Youth Affairs and Sports and Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandavia, to kindly come forward and address the audience. Those were some very, very important points mentioned by Honourable Minister. और इन सब बातों के ऊपर चर्चा ज़रूर होगी because हमारे दो panel discussions हैं जिनका topic जो चर्चा का विषय है वो यही है. So we will touch on those points, but very, very important points mentioned out there to keep in mind as we set out on this journey. Now, before we go ahead, it's important to felicitate our dignitaries who are present here with us, and for that, may I please request Shri Hari Ranjan Rao sir to kindly felicitate the Honourable Minister of Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandavia ji. Please, if you could felicitate our Minister, please, here. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. I also request Shri Hari Ranjan Rao sir to kindly felicitate the Honourable Union Minister of State for Youth Affairs and Sports, Srimati Raksha Nikhil Katse. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I now request Dr. Mansukh Mandavia to kindly felicitate Harbhajan Singh. A lovely, lovely moment. Our Honourable Union Minister of Youth Affairs and Sports and Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandavia, celebrating and felicitating Shri Harbhajan Singh. I now request Srimati Raksha Nikhil Katse to kindly felicitate Saina Nehwal. Our Honourable Union Minister of State for Youth Affairs and Sports, Srimati Raksha Nikhil Katse, felicitating the Olympic medalist and the pride of the nation, Saina Nehwal. And may I now please request a very kindly join us, the Regional Director, Mumbai of Sports Authority of India, Shri Pandaram Shate IRS, to kindly join us to felicitate Secretary of Sports, Shri Hari Ranjan Rao. While he's looking back, mirror breaks after math. When I hate, I attack. And may I please obey Rohit Shetty. Well, ladies and gentlemen, we have now come to a very special moment. It is a presentation of a Fit India Icon certificates. And for that, may I please request Dr. Mansukh Mandavia to kindly felicitate our three Fit India icons, Harbhajan Singh, Rohit Shetty and Saina Nehwal. So I first request Dr. Mansukh Mandavia to kindly come felicitate Harbhajan Singh with a certificate as well as a memento. This is the Fit India Icon certificate. This is to kindly present the certificate to our distinguished Fit India icons. We'd like to present a certificate to Rohit Shetty. Our icons for a fitter and a better India, ladies and gentlemen.
And a certificate to Saina Nehwal. Three icons of the Fit India movement that we look forward to, the Fit India icon certificates to Harbhajan Singh, Rohit Shetty and Saina Nehwal. And everyone here. I think fitness start होता है जहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो आई थिंक वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स मेडल्स भी ज़्यादा है, तो लोग भी फिटनेस के लिए ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. इनफैक्ट व्हेन आई ऑलमोस्ट प्लेड फॉर लाइक 20 years नाउ एट द हाईएस्ट लेवल, एंड व्हेन आई गो टू जिम, ऑफिस से ज़्यादा आई थिंक जिम में ही लोग रहते हैं एंड दे वर्कआउट सो मच. एंड एक्चुअली सर वाज सेइंग कि साइकिल पे जाया करो, मैं बोलती हूँ भाग के जाया करो ऑफिस, वहीं पे चेंज कर लिया करो. And that's because I learned from my father, you know, at the age of 60, 65 also he used to walk say 4-5 kilometers and he used to be like, ये कार का भी यूज़ क्यों कर रही है, चल come with me, walk with me. So I think fitness is very important, दिल से होना चाहिए. जहाँ पे आप अगर examples देखिए, like China, you know, obviously मुझे तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन China is one of the fittest country. सब लोग वहाँ पे इतने फिट हैं, जापान के लोग इतने फिट हैं और वहाँ पे मेडल्स भी इतने सारे आते हैं. इट्स जस्ट बिकॉज आई थिंक जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो ज़्यादा है, वो इंडिया में ग्रो हो रहा है. फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स आई कैन सी दैट वी हैव गॉट सो मेनी ओलंपिक मेडल्स. लड़कियां ज़्यादा हैं, आई होप लड़के थोड़ा यू नो और वर्कआउट करें इसके लिए. बट क्रिकेट नहीं हम, बट अदर स्पोर्ट्स में आई थिंक वी नीड टू स्टिल कम अप एंड शो आवर रिजल्ट्स. As sir said, you know, we are doing this movement, you know, Fit India movement. It's very important that we get more sports persons from different sports as well. It's that we have many sports persons from Haryana, from Hyderabad, from Bangalore. But और भी country में I think we need more academies. We need more highest level coaches, trainers and physios. ताकि आई थिंक वो इंटरेस्ट बना रहे. एंड एज यू सी बैडमिंटन अभी इतना अच्छा चल रहा है, देयर सो मेनी प्लेयर्स हु आर कमिंग अप, दे वांट टू डू वेल एट द हाईएस्ट लेवल, लेकिन काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स को रोकना पड़ता है बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर फंडिंग, और नहीं तो काफ़ी उनको जो चाहिए होता है टॉप 50 लेवल पे वो सब रिक्वायरमेंट्स नहीं मिल पाती है, तो उनका गेम छूट जाता है. एंड फाइनली ऑप्शन क्या रहता है, इंजीनियर या डॉक्टर बनना. That's where I think हम स्मार्ट और इंटेलिजेंट बहुत हैं, लेकिन थोड़े लेजी हैं in terms of physical activities. You know, when I started playing, I used to always like train for like 10-11 hours, और मेरे कोचेस भी मुझे बोलते थे थोड़ा कम करेगी तो भी चलेगा. लेकिन आजकल के बच्चे 1 घंटे भी मतलब मुश्किल से ट्रेनिंग करते हैं या नीचे जाके कुछ खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. They always on the phone, which is little scary. खेलो, क्योंकि मैं मना नहीं कर सकती, it's become a very big part of our lives. But I think you have to spend some time in the ground as well. अपने friends के साथ कोई भी sporting activity हो, you have to do it for some time. Gym obviously that is after 17-18, but before that I think it's very important to do gymnastics या कराटे. These are the sports actually जो अपने छोटे बच्चे हैं उन सबको ये सीखना चाहिए. एंड बाकी तो ऑब्वियसली चीज़ें आजकल बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं, दे हैव एवरीथिंग ऑन देयर फोन, दे कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, कैसा खाना खाना चाहिए, कैसे कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए. बट आई थिंक पेरेंट्स जितने इम्पॉर्टेंट है आजकल वो बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना है. बट आई फील पेरेंट्स को पेरेंट्स रहना चाहिए, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, सो दैट आई थिंक दे लर्न इट फ्रॉम चाइल्डहुड. एंड देन लेटर व्हेन दे ग्रो अप वो नेचुरली हम में आ जाता है. जब मैं 8-9 साल की थी ऑब्वियसली आई डिडंट नो, मुझे लगता था मैं डॉक्टर बनूंगी, पापा साइंटिस्ट है, कुछ पढ़ाई में कर लूँगी. बट जब तक मेरी मम्मी ने मुझे पुश नहीं किया, इतने सारे थप्पड़ नहीं मारे और मेरे अंदर नहीं डाल दिया कि तुझे जीतना है, अच्छा करना है, तब तक ऑब्वियसली आई डिडंट नो व्हाट टू डू. बट बाय द टाइम आई वाज 12-13 आई वाज लाइक नहीं, मम्मी ने बोला था ओलंपिक चैम्पियन बनना है तो आई विल ट्राई फॉर दैट. एंड बाय गॉड्स ग्रेस वर्ल्ड नंबर 1 भी बनी मैं, ओलंपिक मेडल भी लेके आई. सो आई थिंक इट्स जस्ट द बिलीफ. और मम्मी हाउसवाइफ है तो आई थिंक इट्स अ बिग लेसन. एक हाउसवाइफ इज बिलीविंग इन मी दैट आई शुड बी एन ओलंपिक चैम्पियन समडे. एंड बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन आई कैन ओनली से फिट इंडिया मूवमेंट को हम ऐसे ही कामयाब बनाते रहे. और सर जो साइकिलिंग का इवेंट आप कर रहे हैं, कल मैं उसकी भी चीफ गेस्ट हूँ.
एंड आई होप मैं थोड़ी देर मैं भी चला सकूँ साइकिल, मैं उनके साथ भागूंगी लेकिन सो यस सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस सर. It's on the podium, or if you like from there as well. Good evening, everyone. Rohit, for better pictures, we want you to come to the podium. If you could join us here at the podium, please. Oh, can I remove this height thing? Thank you. Good evening, everyone. First of all, I'm very proud because we got a Prime Minister who thought about it, about health, about fitness, which is very important. ऐसा कहते हैं कि हर किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जब हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. सर ने कहा कि वी आर अ यंग इंडिया. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कुछ सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आई हैव बीन इनटू फिटनेस फॉर मोर देन 30 years नाउ. लिटिल स्कैरी इज आजकल हर कोई हेल्थ फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन गया है, और जो हमारी यंग जनरेशन है शायद वो उन्हें फॉलो कर रही है ना जानते हुए कि whether they really are professional dietitians, nutritionists, or are they really, they know how to train people. Many of them youngsters मैं देखता हूँ जो गाइड करने की कोशिश करते हैं through making videos, and you can make out that they have taken steroids. You can make out that they are on fat burners. The scary part is जो हम लोग जो मतलब now we are like on that stage, like हम seniors हैं, we can understand that okay, it's not important because we had our own journey. We all had our own journey. But the new generation, we have to be very careful. हमें कुछ guidelines बनानी होंगी, especially on social media, कि who can address this, who can guide, who can give suggestions. Mickey sir will agree to me, he's a senior person. It's little because it's easily available. आज अगर हम देखें तो कई अगर आप रेस्टोरेंट जाएं तो आप देख लेते हैं कि बच्चों को अगर बच्चे खाना नहीं खा रहे तो हम उन्हें मोबाइल दे देते हैं. स्पेशली इन सिटीज़ लाइक मुंबई जहाँ पे कंस्ट्रक्शन इतना है, यू नो, जब हम छोटे थे तो यहाँ आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, स्पेस था, हम मट्टी से जुड़े हुए थे, हमारा इम्यून सिस्टम अलग है. अब जो बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम शायद हमारे जैसा ना हो, एंड द रीज़न इज़ नॉट दैट दे आर एट फॉल्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिस्टम, द इकोसिस्टम लाइक जिसमें हम सब बड़े हो रहे हैं. एंड आई एम रियली प्राउड कि आज मैं यहाँ पर हूँ इन दिस कॉन्क्लेव. बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमें एड्रेस करना चाहिए. एक माइंडसेट, एंड आई वुड लाइक टू थैंक, मैं यहाँ आने से पहले हम 15 मिनट मैंने मनसुख जी के साथ बिताया, एंड 15 मिनट में उन्होंने सिर्फ हेल्थ फिटनेस हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और एक जो बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने कही है वो है हमारा माइंडसेट. हम ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट बाहर से लाना होगा, हम ये क्यों सोच रहे हैं कि हमें जिम इक्विपमेंट बाहर से लाने होंगे. देयर आर कंट्रीज जहाँ की गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स बनाती है उनके एथलीट्स के लिए, हम भी वो कर सकते हैं. और सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं, हम अपने बच्चों के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए वो कर सकते हैं. जिम इक्विपमेंट्स हम बना सकते हैं और बनाना चाहिए भी हमें. एक चीज़ और जो मुझे लगता है विच इज़ वेरी सीरियस थिंग इज़ कि हम हेल्थ को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं जो हमें देना चाहिए. और मेरा यहाँ आने का रीज़न आज यही था कि आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील प्राउड कि हम इस तरह के कॉन्क्लेव्स कर रहे हैं. गवर्नमेंट इस चीज़ को इतनी सीरियसली ले रही है, एंड आई वुड लाइक टू जस्ट से कि हमें हर साल ये करते रहना चाहिए. साइकिलिंग हम प्रमोट कर रहे हैं, एथलीट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं. बहुत सारे लाइक सानिया सेट के बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं, या जिन्हें बिजनेस कम्युनिटी में जितने लोग हैं, आई थिंक दे शुड कम आउट, बिजनेस फैमिली शुड कम अप टू प्रमोट, टू गाइड, टू हेल्प, टू गाइड न्यू किड्स इन वेरियस स्पोर्ट्स.
saying this, I would like to end like, yes, this is a young India. एक क्विट मूवमेंट हुआ था, ब्रिटिशर्स भाग गए थे, एक फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, हेल्थ को वापस ले आते हैं. थैंक यू सो मच. Bhaji, would you like to share your thoughts right now, or would you like to share your thoughts during the panel? Say a few words, do join us, and then in the panel discussion, we'll pick up a topic again. गुड इवनिंग एवरीवन. सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है, और ये एक बहुत गंभीर सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है. और आज क्योंकि हेल्थ कंडीशन को लेके सब अपने आप में जूझ रहे हैं, लोग दवाइयों पे लग गए हैं, तो अब सबको लगता है कि फ़िटनेस कितनी ज़रूरी है, जबकि ये पहला हिस्सा होना चाहिए. खाने से ज़्यादा ज़रूरी पहले स्पोर्ट्स होना चाहिए. अगर जो स्पोर्ट्स करता है वो दवाइयों से बहुत दूर रहता है. तो मैं ग्रेट मिल्खा सर की थोड़ी सी एक बात करके ना मैं बैठ जाऊंगा कि उन्होंने कहा कि मैं जितनी उम्र तक जिया हूँ उन्होंने कभी दवाई नहीं खाई, और ना दवाई खाने का कारण सिर्फ एक ही था कि वो रोज़ रनिंग करते थे. कहते थे एक दिन बहुत सर दर्द हो रहा था तो मिसेज ना उनकी कोई दवाई रख के चले गए कि ये खा लेना, वो उठ के रनिंग करने चले गए. तो ये स्पोर्ट्स ऐसा माध्यम है कि जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो ना, बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हो, और जो स्पोर्ट्स करता है वो दवाइयों से दूर रहता है और बीमारी से दूर रहता है. और आज हम स्पोर्ट्स को इसीलिए बात की जा रही है कि हम अगर देखें, हम कह रहे हैं यूथ इंडिया है, बट यूथ इंडिया फिट कितना है. अगर वो फिटनेस की हम परसेंटेज की बात करें तो मुझे लगता है उसमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मंत्री साहबान और पूरी भारत देश की जो अब एक मुहिम है कि स्पोर्ट्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए, बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, हम सबको साथ जोड़ा है. आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी हियर सर, एंड वट एवर लिटिल वे वी कैन हेल्प ग्रो स्पोर्ट्स इन इंडिया विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू बी पार्ट. और हमारे ऐसे चैम्पियन जो वर्ल्ड लेवल पे हमारा नाम ऊंचा किया है, वो एक क्यों सर, चाइना ही क्यों सारे मेडल लेके जाए या ऑस्ट्रेलिया ही क्यों मेडल लेके जाए. जो कल्चर की बात करी, क्रिकेट का कल्चर बहुत है यहाँ. आप देखेंगे विराट कोहली, तेंदुलकर, बाद में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, अभिषेक, कोई ना कोई तो बन के आ ही जाता है. बट साइना के बाद दूसरी साइना हम अभी भी ढूंढ रहे हैं. तो वो सर इतनी बड़ी आबादी में मुझे लगता है कि हमारे पास कम से कम 100 साइना होनी चाहिए, और ऐसे ही हर स्पोर्ट्स में. तो इसके बारे में और ज़रूरी है कि जो छोटे छोटे शहर हैं, जैसे जहाँ से मैं आता हूँ, मैं जलंधर शहर बहुत छोटा सा शहर है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सपने थे कि कुछ करना है जीवन में, कपिल देव जैसा बनना है थी, बट लेकिन वो जोश जज्बा उतना ही था जितना एक बड़े सिटी वाला होना चाहिए. और आज अगर हम उन्हीं शहरों को देखें तो वहीं से धोनी आया, वहीं से आज बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, हर क्षेत्र में आ रहे हैं, हर क्षेत्र में. तो मुझे लगता है कि वो अगर वहाँ बच्चों को थोड़ा सा और हम पुश करें, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर हो सके, ताकि हम देखेंगे कि जो हमारी आबादी है और जो हमारे पास टैलेंट है उसमें हमारी जो मेडल जीतने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है. बट हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि हम शायद उतना प्लेटफॉर्म दे नहीं पाते हैं. और बहुत सारे जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं या लड़के हैं या लड़कियां हैं वो छोड़ जाते हैं, वो परस्यू कर लेते हैं कि नहीं स्टडी करके कुछ करते हैं. तो थोड़ा सा और खेल को बढ़ावा देने की ज़रूरत है. वी नीड ऑल ऑफ़ यू पीपल्स बैकिंग कि स्पोर्ट्स जो है वो मोबाइल फ़ोन पे नहीं है बच्चों के लिए, कि अनफॉर्चुनेटली आज जो स्पोर्ट्स है वो शिफ्ट हो गया बहुत सारा मोबाइल फ़ोन पे. तो हमें कहीं ना कहीं उस पर फोकस करना है कि बच्चों को वो एक्चुअल ग्राउंड तक कैसे भेजना है. किसी तरीके का भी स्पोर्ट्स खेले तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा. और स्पोर्ट्स सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, 60 साल के लिए बंदे के लिए भी है, 70 साल के लिए, जब तक जी रहे हो स्पोर्ट्स आपके लिए एक ऐसा माध्यम है जैसे आप रोज़ खाना खाते हो, और खाना पचाने के लिए आपको स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है, और लंबा जीने के लिए स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है. तो बहुत शुक्रिया, आज मैं यहाँ पे हूँ सर. थैंक यू फॉर कॉलिंग अस हियर, एंड आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ गोइंग फर्दर ऑल्सो. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Bhaji. Thanks a lot, and thank you to each and every dignitary for sharing your thoughts forward. And now request कि जितनी भी बातें यहाँ पे बोली गई हैं उसमें से एक बात तो बहुत क्लियर है कि अभी भी भारत को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो तय करना है, लेकिन हम काफ़ी आगे आए भी हैं.
तो जो हमने अभी तक अचीव किया है और जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है उसके बारे में चर्चा ज़रूर होनी चाहिए, और एक बार आप सबको ये पता भी लगे कि कितना इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑलरेडी ले चुकी है इस बात पर. So ladies and gentlemen, this is where we start with our very first presentation. We'll just wait for our dignitaries to take their seats. And may I now please invite the representative from FICCI to kindly present an overview of India's fitness business scape. फिटनेस और हेल्थ सबसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं. अगर आप फिट हैं तो आप वो हर चीज़ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो आपका एम है. बट उसके लिए अगर आपकी फ़िटनेस ही नहीं रहेगी तो शायद आप वो अचीव ना कर पाएँ. और स्पेशली अगर आप फील्ड जॉब में जिस तरह के मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जिस तरह का काम हम सब करते हैं, और भी है कंस्ट्रक्शंस, बाकी भी ऐसी जो जॉब्स है जो फील्ड जॉब है उसमें फिटनेस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट होता है. आज के आयोजन को किस तरह से आप देखते हैं? एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, और मेरे ख्याल से इसे बहुत सीरियसली आगे लेना चाहिए और हम सब इससे जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे. बिकॉज़ ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए. और जब हम अपने आने वाली जनरेशन की बात करते हैं तो हम अपने फ्यूचर, हमारे देश के फ्यूचर की बात करते हैं. तो हेल्थ जो है आज मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे बड़ा कंसर्न है, बट हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं वो ड्यूटी अब हमारी है, और फिटनेस उसमें सबसे ऊपर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवाओं को ये मैसेज दूंगा मैं कि गाइडेंस ले, करेक्ट गाइडेंस ले. और टू बी फिट इट्स वेरी सिंपल, एक सिंपल मेथड है उसका. उसमें इतना अगर आपको एक बेसिक, अगर आप एथलीट नहीं हैं, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं या आप किसी और व्यापार से जुड़े हुए हैं या आप एक ऑफिस गोवर हैं, कॉर्पोरेट जॉब में हैं, तो फिटनेस की जो थियोरी है जिसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. एक बेसिक है कि करेक्ट आप खाएँ, करेक्ट वर्कआउट करें एंड नींद लें करेक्ट. ये बेसिक चीज़ें होती हैं और इसके लिए कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. एंड ये एक पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए. आपकी डाइट, आपका खाना और आपका जो रेस्ट टाइम, ये आपके एक जो बेसिक, मैं कहूँगा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए आपकी लाइफ में. I don't know how easy. Yes, it is easily available. That's why people are using it. But I don't think it is steroids are required for everyone. You know, it's like and it should not be. It's a what I feel is like you need to have the correct trainers, correct nutritionists, doctors to do this. And I don't think youth who are just want to be fit and look good and have a good body should not use steroids. Against it. इंडिया आइकॉन का टाइटल भी आज मंडपेश जी ने मिनिस्टर है, जी जी, और साइकिलिंग भी वो करते हैं. Would you like to join him? And I would love to. How did you feel? I would love to join him. You do a lot of stunts, like how fitness also. Fitness is the most important thing in stunts, yes. और आज मतलब मुझे कोई फिल्म के लिए नहीं, फिटनेस के लिए बुलाया गया. So stunts के लिए भी फिटनेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है. सर, भारतीय महिला क्रिकेट टीम जा चुकी है, कल फाइनल्स होने वाले हैं, क्रेज काफ़ी ज़्यादा है. What would be your message? आई एम वेरी हैप्पी कि वुमेंस क्रिकेट को इतना एक पॉपुलैरिटी अब मिली है, और जिस तरह से हमारे प्लेयर्स, जो हमारी लड़कियां जो खेल रही हैं, आई एम सो प्राउड. जिस तरह से मैं वो एग्रेशन देखता हूँ स्पेशली, आई एम रियली प्राउड ऑफ देम एंड आई विश देम ऑल द लक. Sir, what are your plans to watch the match? आप देखने वाले हैं? I will definitely watch. Sir, like और चीज़ें 16th birthday sir. जी जी. How would you like? I wish him good luck. It's been a great association. I made 2 films with him, and I wish him good luck. I wish him good health, and I just want all good things to happen in his life. रोहित सर, हाई सिटीज में भी लोग ज़्यादा अवेयर हो गए, लोग जिम जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोग्रेस के, मतलब डाइट
मैं सिर्फ नहीं, ध्यान देना ज़रूरी है, बट एक बेसिक होता है। ये जो हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ना, क्योंकि अगर आप सुबह से लेकर रात तक सोशल मीडिया पे रहें तो और सब चीज़ की नोट कर लें आप, तो रात को आपको पता चलेगा कि आप कुछ नहीं खा सकते, सब कुछ बुरा है। ऐसा होता नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हाफ नॉलेज वाले लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं सोशल मीडिया पे, जिसका हमें ध्यान रखना होगा और कोई ना कोई एक इनिशिएटिव लेना होगा कि कौन हेल्थ के रिलेटेड बात कर सकता है, डाइट के रिलेटेड बात कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। एक सेकंड। मैम, आज आपको फिट इंडिया आइकॉन का टाइटल स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने दिया, कैसा आपके लिए और आज नेशनल फिटनेस और वेलनेस कंक्लेव का पार्ट बनेगा, उसके बारे में? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर का कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया आज और फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में उन्होंने हमसे सजेशन लिए और जो मूवमेंट चल रहा है 5 साल से फिट इंडिया का, डेफिनेटली आई कैन सी लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इतने सारे लोग आज फिटनेस पे इतना ध्यान देते हैं, अच्छे खाने पे बहुत ध्यान देते हैं और ये मूवमेंट चलता रहे ऐसे ही और ऐसे ही लोग फिट रहे। आई रियली वांट टू बिलीव दैट, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं चाहती हूँ अपना कंट्री फिटनेस के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी और ध्यान दे और स्पोर्टिंग कल्चर हमारी कंट्री में आए, ताकि जो मेडल्स हैं वो और ज़्यादा हो जाए और लोगों को और इंटरेस्ट आए स्पोर्ट्स में। एंड एज ए फिटनेस दे कैन ऑल्सो प्ले सम स्पोर्ट्स, क्योंकि फिटनेस सिर्फ जिम जाना ही नहीं होता है, यू कैन ऑल्सो डू इट इन द ग्राउंड और प्लेइंग एनी स्पोर्ट। तो आई जस्ट होप कि जो स्पोर्ट्स है वो भी और इम्प्रूव होए हमारे कंट्री में और सारे बच्चे स्पोर्ट्स में आए और अच्छा करें। बताना चाहें कि प्लेइंग डेज में जो है जिस तरह की फिटनेस की आपने बताया कि 10-11 घंटे आप ट्रेन करते थे जी, और चाइनीज जो कि उस समय डोमिनेट कर रहे थे आपके स्पोर्ट में, तो उन्होंने उनको आपने हराया जी, यूथ द वर्ल्ड नंबर 10। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं कि उस समय फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट था और कितना चेंज आया है उसमें। जैसे आप जानते हैं चाइना एक पावर हाउस है बैडमिंटन में ऑलरेडी, तो उनको हराने के लिए इतने घंटे तो ट्रेनिंग लगेगी, तो 10-11 घंटे भी कम लगते थे कभी कभी। तो इमेजिन वो लोग भी कितने ट्रेनिंग कर रहे होंगे टू गेट मेडल्स इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। बट आई थिंक मेरे जो वर्किंग क्वालिटी थी, मैं बहुत हार्ड वर्किंग प्लेयर थी और मेरे जो कोचेस थे बहुत खुश थे उस बात से। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे अंदर एक क्वालिटी थी कि नेवर गिव अप और जितना हो सके अच्छा ट्रेनिंग करना है, अपने कोचेस को या पेरेंट्स को हमेशा जो वो बोल रहे हैं उनकी बात सुननी है। तो मैं चाहती हूँ कि आजकल के बच्चे भी ऐसा करें। अगर मैं कर सकती हूँ तो हम सब इंडियंस में वो क्वालिटी है, वो टैलेंट है। इट्स जस्ट दैट थोड़ा बिलीफ हम कहीं ना कहीं उसमें रह जाते हैं और थोड़े लेज़ी हो गए हैं आजकल। लेकिन आई फील कि हमारा जितना टैलेंट है और हम जितने स्मार्ट हैं, वी कैन डोमिनेट एनी फील्ड। एंड आई रियली विश कि स्पोर्ट्स में भी और बच्चे ऐसे ही ध्यान दें। और मैं चाहती हूँ कि ग्राउंड में जाके और ट्रेनिंग करें। 30 मिनट्स ऑब्वियसली स्कूल में एक पीरियड मिलता है हमें जहाँ पे हम स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, लेकिन 30 मिनट्स इज़ नॉट इनफ टू बिकम अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन। वो भी एक जॉब की तरह है, यू नीड टू गिव एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स। तो वो एक अलग तरह से हमें लेना चाहिए। और मुझे स्कूल्स में भी आई विश, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो पीटी पीरियड है वो भी 1 आवर तक एक्सटेंड हो जाए, तो यू विल नो कि कौन सा प्लेयर किधर खेलना चाहता है, कौन से स्पोर्ट में खेलना चाहता है। तो हम टैलेंट जो है वो स्कूल से लेके आ सकते हैं, वो विलेजेस से लेके आ सकते हैं। एंड दैट्स हाउ वी कैन गेट द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन। बट अदरवाइज स्टडीज़ में तो हम बेस्ट हैं ही। ऑल्सो मैम, कल बहुत बड़ा दिन है महिला क्रिकेट के लिए। भारत और दक्षिण अफ्रीका फाइनल खेलने वाला है एंड कल इतिहास रचे जाएगा। अगर भारत जीतिए तो पहली बार होगा कि भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप लाएगी। किस तरह की विशेष आपकी? मेरी विशेष तो हमेशा जो भी स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा करते हैं उनके साथ है। और कल इतना बड़ा दिन है हमारे लिए। आई विश सब हम लोग उनको चीयर करें। और अगर उन्होंने इतिहास रच दिया कल और जीत गए, तो आई थिंक उनको जो उनका वेलकम होना चाहिए वो बहुत ग्रैंड होना चाहिए, ताकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनको लगे कि हमें भी स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। और हमें भी, चाहे वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, सब स्पोर्ट में मतलब उनको इंटरेस्ट आने के लिए ऐसे मैचेस दिखाने चाहिए। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका टुमारो। ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने बहुत अच्छा किया और लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारोज मैच एंड आई विश द गर्ल्स ऑल द वेरी बेस्ट।
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जिम को एकदम ज़ीरो कर दो. यू नीड टू बी टू वर्कआउट इन द ग्राउंड और कोई स्पोर्ट खेलने के लिए यू नीड टू हैव दैट टोन बॉडी, यू नीड टू लिफ्ट हैवी वेट्स. बट आप किसी ट्रेनर के साथ वो करें तो बहुत अच्छा रहेगा. You have to spend some time in gym and some time in the ground or any sport. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ स्पोर्ट्स खेल रहे हैं and then you get injured in some point of time and फिर से आपको फिजियोज और डॉक्टर की ज़रूरत पड़े. Gym is very good to get conditioning exercises and weight training, but उसके लिए भी आपको प्रोग्राम होना चाहिए, right kind of trainers होने चाहिए, and definitely you will get good results to play. कोई भी स्पोर्ट अगर आप खेलना चाहें तो सबका 50-50 एक होता है चीज़. एंड यू कैन नॉट जस्ट गो टू जिम एंड डू ओनली जिम, उसके साथ आप कार्डियो भी करेंगे, राइट. सो फॉर कार्डियो आई एम सेइंग कि आप कोई भी स्पोर्ट खेल लीजिए. अगर आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं तो आपके पास ऑलरेडी सब चीज़ें होती हैं कि आपको क्या करना है. बट अगर आप नॉर्मल स्कूल जैसे बच्चे जा रहे हैं या जो जॉब के लोग रहते हैं उनके लिए आई वुड से थोड़ा डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा जिम डिवाइड कर लीजिए और थोड़ा सा हो सके तो कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ कर लीजिए टू मेंटेन गुड फिटनेस. जी, I definitely feel we can get gold medal, not only women but also I feel men player can do that in the future. All of them are very dedicated, very hardworking. It's just that I think थोड़ा up and down होते रहते हैं. Even if you see बैडमिंटन में काफ़ी दूसरे कंट्री जो पहले अच्छा करते थे वो थोड़ा से डाउनफॉल में आ चुके हैं. तो ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ प्लेयर्स स्टक हो जाते हैं, दे डोंट फाइंड द आंसर्स ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. बट वी विल डेफिनेटली फाइंड द वे आउट. एंड जैसे कि गोपी सर हैं और दूसरे कोचेज़ हैं जो फुल टाइम डेडिकेशन के साथ ट्रेनिंग करवा रहे हैं. आई डेफिनेटली फील नेक्स्ट ओलंपिक या उसके बाद वाले ओलंपिक आई डेफिनेटली फील गोल्ड मेडल इज़ वेटिंग फॉर बैडमिंटन. So, what kind of injury she had? Like, she came back, she was knocked from the side, and then she had anxiety issues and all. She that's talked about it. That's very open. That's normal. I think sports person की life is injuries, is equal to injuries. आपको ready रहना है कि आपको injury होगा ही होगा. You will not have 20 years of beautiful career. बहुत मुश्किल हो जाता है और you need to be very blessed to have that good body. बट निगल्स रहेंगे, सर्जरीज रहेंगी, मेजर इंजरीज रहेंगे. बट यू हैव टू आई नो एंग्जाइटी इशूज़, स्ट्रेस इशूज़, रात में नींद नहीं आता है, यू डोंट वांट टू बी विद योर फ्रेंड्स, यू डोंट वांट टू वॉच टीवी, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग बेसिकली. यू जस्ट फील कि मैं फील्ड में कब आऊँ, मैं वापस कब खेलूँ. So that stress is always there. But I think for that, as I mentioned, you know, meditation is one big part. You know, you have to sit with yourself or maybe get a guru or a coach for meditation and just do that regularly and believe in yourself कि मैं कम बैक करूँगी. जैसे कि उन्होंने दिखाया, उन्होंने कम बैक किया और अभी फाइनल्स में है. So there is no giving up. इंजरीज होगा but you know it's like your job. You cannot give up just like that. अगर आपने give up कर दिया तो giving up is so easy. You can just give up and sit whenever you want. But अगर आपने fight back किया, अगर आपने challenge accept किया, that's what a sports person is. You know, you have to accept the challenges, come back stronger, and show the world what you are. So tomorrow they are playing finals. So yeah. Last question. Have you seen a change in mindset in the future generation and the expectation now? And is there something that they also need to change? Oh my God, mindset अभी थोड़ा tough हो गया है. You know, we used to be like जो भी कोच कहता है वो ही पत्थर की लकीर है. बट अभी जो बच्चे हैं थोड़े डिफ़िकल्ट हैं हैंडल करने के लिए. दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम द कोचेस. इट्स नॉट एन ईजी जनरेशन but they are very smart, they are very talented, but how to handle them is little tricky. So when I see the coaches handling them, it's not easy, you know. आप थोड़ा ज़्यादा गुस्सा नहीं कर सकते हैं, where you have to control, ये सब check में होना चाहिए. But they pick up very fast, they are very smart. It's just that I think physically और work करें अपने आप पे. थोड़े से fragile हैं, I feel आजकल के बच्चे, they feel that थोड़ा push करेंगे, कुछ pain हो जा रहा है, कुछ injuries हो जा रही हैं. But I think if they are taken care for good conditioning exercises, मतलब उनके फिजियोज और ट्रेनर्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे. तो आई जस्ट फील कि आप मेंटली और फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझें, वो ज़रूरी है. समझना बहुत ज़रूरी है
बाकी तो कोचेस के हाथ में और आपके हाथ में कि आप कितना अचीव करना चाहते हो। काफ़ी प्लेयर्स सिर्फ वहाँ पे आते हैं खेलने के लिए, बट काफ़ी जीतने के लिए आते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली सी द डिफरेंस कि कौन खेल रहा है और कौन जीतने के लिए खेल रहा है। मैम एक सवाल के लिए इस तरह से सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, बट स्पोर्ट्स की बात करें, स्विमिंग में इतने सारे गोल्ड मेडल है, भारत इतना बड़ा देश हो के भी आपको क्या लगता है भारत में काफ़ी कम, नीरज जी ने एक गोल्ड मेडल लाया है, इतने सालों में भारत कहाँ पीछे रह गए और गोल्ड मेडल क्यों नहीं आ पा रहे भारत? मुझे लगता है थोड़े से और एकेडमीज़, थोड़े से और वर्ल्ड क्लास कोचेस होने चाहिए, और एकेडमीज़ जहाँ पे यू फील के हाँ दिस इज़ द एकेडमी वेयर आई कैन बिकम समथिंग, यू नो। मैं हैदराबाद में इतनी बड़ी एकेडमी है या बैंगलोर में इतनी बड़ी एकेडमी है बैडमिंटन की, मुझे लोग पूछते हैं यूपी से कि हम कहाँ ट्रेनिंग करें टू गेट द बेस्ट ट्रेनिंग, यू नो, जो बच्चे हैं आजकल। तो आई फील जैसे ऐसे एकेडमीज़ थ्रू आउट इंडिया हो जाएं, अगर नॉट ओनली फॉर बैडमिंटन बट एनी स्पोर्ट, और वैसे ही कोचेज़ और वैसे ही फैसिलिटीज़ जो वहाँ पे हैं वैसे बन जाए, तो आई डोंट फील एनी रीज़न कि हमें रिजल्ट क्यों ना आए। बट वो एक इशू है। हम फॉर मी एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आई कैन से दैट, क्योंकि क्रिकेट के एकेडमीज़ यू कैन सी इज़ एवरीवेयर इन इंडिया, इतने अच्छे कोचेज़ हैं उनके, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं उनकी। बाकी डिपेंड करता है आप रिजल्ट्स कैसे लेके आते हैं। तो आप क्योंकि इट्स अ टफ गेम, यू ओनली 11-12 प्लेयर्स कैन बी एट दी हाईएस्ट लेवल प्लेइंग द मैचेस, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग अच्छा नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आई फील एकेडमीज़ ये सब तो बात की बात है व्हेन यू हैव परफॉर्म्ड एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए इंडिया में कि आप स्कूल में ओलंपिक साइज़ सब कुछ बना तो दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अगर 30 मिनट्स का पीरियड ही है तो आप क्या अचीव कर लेंगे। तो आई फील कि कहीं ना कहीं ऐसे जगहों पे अच्छे कोचेज़ और ट्रेनर्स भी चाहिए टू गेट दैट क्वालिटी ऑफ मतलब ट्रेनिंग। एंड देन आप बोल रहे हैं गोल्ड मेडल्स की बात कर रहे हैं, तो इमेजिन कितना टाइम और हमें ट्रेनिंग में लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं माइकल फेल्प्स को भी बोलते हुए सुना है कि वो संडेज़ को भी 8-9 घंटे ट्रेनिंग करते थे, यू नो। सो दैट इज़ हाउ द डेडिकेशन शुड बी एंड द ट्रेनिंग शुड बी। क्या अच्छा ओके। आपको देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ। सर सबसे पहले आज के इस इवेंट के बारे में बताइए। इट्स अ वेरी बिग इवेंट फॉर यू एंड आल्सो फॉर द स्पोर्ट्स। हाउ वुड यू लाइक टू से? आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये फोकस कर रही है कि हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस लोगों का होना चाहिए। मैं इतने सालों से ये बोल रहा हूँ बिकॉज मैं 150 किलो का था और मैंने 75 kgs कम किया है। बट when it comes from the government and they take it seriously, that's when people start taking it seriously. सबको समझ में आता है कि फिट रहना बहुत ज़रूरी है, रेगुलेशंस होने चाहिए, जो ब्रांड्स बिक रहे हैं उसमें फॉल्स मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। लोग ऑर्गेनिक बोल के ऑर्गेनिक बेच रहे हैं बट वो ऑर्गेनिक होता नहीं है। सो आई थिंक if the government starts becoming serious, which you know our honorable prime minister is taking it very very seriously, which is amazing. मैंने आज तक ये कभी नहीं सुना है। and our sports minister honorable मनसुख मांडविया जी is so खुद लगे रहते हैं। उन्होंने दिल्ली में पूरा साइकिलिंग का एक दौर शुरू किया है, खुद साइकिलिंग करते हैं। सो मैंने उन्हें कहा कि प्लीज़ मुंबई में भी ऐसा कुछ करो। सो it's very very good and I'm honored that I could be a part of a stage like this and share my experience, and I feel this is just the beginning. We are a young country, we should be fit. हम बेस्ट फ्रेंड्स बने फिटनेस के लिए। पहले कि योगा करते हैं, वर्कआउट करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, विदेश में हो या देश में हो, कहीं अगर डिज़र्ट खाना है तो हम पैदल चल के जाते हैं। ऑफ कोर्स बॉम्बे में मास्क पहन के जाना पड़ता है कभी कभार, बट वी बिलीव दैट यू नो फिटनेस is very very important, and both physical fitness and mental fitness, because both go hand in hand. जैसे फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं मुझे गट फीलिंग, बिकॉज अगर आप कुछ गलत खाओगे तो आपको पेट में अजीब लगेगा, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग एंशियस, व्हेन यू आर एंशियस यू विल स्टार्ट टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, या गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ा होगे। सो अगर अवेयरनेस ऑन फिटनेस किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। एंड प्राइम मिनिस्टर साहब ने फाइट ओबेसिटी का जो कैंपेन चलाया है, that is so amazing, because I feel that when you go to the west, आप देखते हो it could be a big vice president of a bank और वो साइकिल में आए,
वो दौड़ के आया। हमारे यहाँ अगर वो कल्चर आ गया तो इट इज़ वेरी वेरी गुड। इससे पोल्यूशन भी अच्छा होगा, लोग फिट भी होंगे। सो या एवरीथिंग स्टार्ट्स with the government, and if the government or a leader, a PM is taking this opportunity and this stance and initiative, I think we are blessed. सर फिटनेस की बात करें तो शाहरुख सर का कल 60th बर्थडे, हाउ वुड यू लाइक टू विश हिम? एंड उनकी फिटनेस की तो बात पूरी इंडिया करती है। पहली बात तो 60 लगते नहीं। आई थिंक इट शुड बी हिज 40th बर्थडे एंड ही इज़ किंग खान, ही इज़ अ लेजेंड, ही इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस। और मैंने उन्हें, आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू इंटरेक्ट अ लॉट विद हिम एट वेरियस ओकेजन्स। मैंने उन्हें कभी भी, मैं थक गया हूँ, हम भी करते हैं, हम उनसे 20-25 साल छोटे हैं, वो कभी भी, ही इज़ ऑलवेज हाई ऑन एनर्जी, ही इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ही ऑलवेज मेक्स यू फील गुड, एंड नो मैटर हाउ टायर्ड ही इज़, he will go to the gym and work out, and that's why you see the result. You see, that's why he's King Khan. Yeah. So I would like to wish happy birthday. मैं तो यही चाहूँगा कि ये 200 करोड़ मारे, 400 करोड़ मारे और ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बने। दे दे प्यार दे। और क्या बोलूँगा मैं? अभी तो क्या है, let's talk about, let this film release, and thank you so much. Sports Forum tomorrow, historic day for India. Indian women cricket team is this close to win its first World Cup. As an active follower of sports, how do you feel right now? I think I was almost emotional. The way those girls have played, the way, and you know how they've cried and they've been. See, also let's be honest that people are getting accustomed to. अच्छा ये तो women's का cricket है, अब वो सब serious हो गए हैं. Everyone's got serious, everyone's got attention, and you have a lot of regressive old school people also saying अरे ये तो लड़कों की तरह खेली. So times change हो रहे हैं. I think they've done brilliantly well. We should support them. Hats off. And क्या खेले यार, outstanding. और मैं यही प्रे कर रहा हूँ कि कल हम वर्ल्ड कप जीतें और पूरा देश वैसे ही स्ट्रीट्स पे आए जैसे 2011 में आया था. थैंक यू सो मच. आइकॉन का टाइटल आपको आज प्राप्त हुआ और नेशनल फिटनेस एंड वेलनेस कॉन्क्लेव का पार्ट बने. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कितने सारे लोगों पर से आपकी बातचीत में इंटरेक्ट किया? ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके. फिट इंडिया के बारे में बात हो रही है, जिसका मतलब है कि भारत अगर फिट होगा तो और कितनी ऊंचाइयों पे हम सब जो है वो जा सकते हैं. वो चाहे स्पोर्ट्स के ज़रिए हो या फिर नॉर्मल लाइफ में अगर आप फिट रहते हो तो फिर आप हर पॉसिबल चीज़ को अचीव कर सकते हो. तो आज बाकी के भी जो लोग डिफरेंट स्पोर्ट्स से, डिफरेंट अगर ट्रेनर्स की बात करूँ, वो न्यूट्रिशंस, वो सब आए हुए थे. तो उनकी बातें सुन के ऐसा लगा कि अभी हमें भी ज्ञान की बहुत ज़रूरत है. बहुत बार हमें लगता है कि हमें सारी चीज़ें पता है, बट लवली टू बी है. बहुत एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि आई एम गोइंग बैक विद लॉट ऑफ लर्निंग. दैट्स ऑल आई कैन से. सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि भारत फिट है तो भारत हिट है. और फिट रहने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी करनी है वो आपके घर से शुरू होती हैं. तो अगर आप फिट हो तो आपके लाजमी तौर पे बच्चे जो हैं वही रूटीन फॉलो करते हैं. जो फिट जिनके माँ बाप होते हैं वो उनके बच्चे भी फिट होते हैं, फिर वो देश का नाम रोशन करते हैं. विराट कोहली, आपने नाम भी मेंशन भी किया वहाँ पे कि विराट कोहली की फिटनेस, और अब जो है कोई भी फील्डिंग में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है. इंडियन टीम की फील्डिंग इतनी बदल गई है, जो फिटनेस पे जो जोर पड़ा है आपके टाइम से अगर आप कुछ बताना चाहें, कोई लेसन से कुछ? ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे, मैं एक चीज़ का क्रेडिट विराट को हमेशा देता हूँ कि जो फिटनेस का एक रुजीम लेके आया है वो भारतीय क्रिकेट टीम में, वो पहले नहीं था. स्किल लेवल पे हम बहुत ऊपर थे बाकी टीमों से, बट कहीं ना कहीं वो फिटनेस में हम लैक करते थे. जो अगर विराट कोहली के एरा में हमने देखा है कि अब लड़के जितने आ रहे हैं दे आर ऑल फिट, दे आर एबल टू टेक दोज ब्रिलियंट कैचेस, दे कन्वर्ट दोज हाफ चांसेस इनटू मैच विनिंग चांसेस. तो वही फ़र्क रह जाता है जीत और हार में कि छोटा सा स्टेप आपका जो है वो मैच जिता जाता है. सो आई थिंक दैट्स वेयर फिटनेस प्लेज द बिगेस्ट रोल. वाई ऑस्ट्रेलिया दे डोमिनेटेड, वाई वेस्ट इंडीज़ डोमिनेटेड, बिकॉज दे वर स्ट्रॉन्ग. एंड नाउ वाई इंडिया इज़ डोमिनेटिंग एंड थ्रू ये वर्ल्ड में क्यों भारत सबसे ऊपर है. अगर क्रिकेट की बात करूँ मैं अपने स्पोर्ट्स की, कि हमारी फ़िटनेस के साथ साथ स्किल लेवल बहुत ऊपर है. और जब फिटनेस के साथ आप स्किल लेवल के आप ग्राउंड में जाते हो
तो ऑब्वियसली आपका जीतना जो है वो उसकी परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाती है। तो क्रेडिट टू ऑल द गाइज यू नो हु वर्कड हार्ड। और एक पैरामीटर है कि इतना आपको फिट होना ही चाहिए टू गेट इन टू द इंडियन साइड, और अगर आप उससे कम फिट हो तो फिर आपकी बात बनेगी नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट मैच है, 14 साल पहले आपने इसी शहर में जो है वर्ल्ड कप जीता था। कल लड़कियों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तारीख भी सेम है, तारीख भी सेम है, 2 तारीख को हमने जीता था, है ना, मैदान भी सेम है ना। तो उम्मीद करते हैं कि रिज़ल्ट भी सेम रहेगा। आई होप जो हमारी लड़कियां हैं कल जाएं और भारत देश का नाम रोशन करें। विल ऑल बी बैकिंग द होल लॉट की बस जाओ और अपना बेस्ट गेम खेलो। यू नो जीत और हार जो होगी हमें मंजूर है, कोई प्रेशर नहीं व्हाट्सएवर। बट आई एम श्योर जिस तरीके की क्रिकेट खेली है मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत के हाथों में कल ट्रॉफी होगी। एज इज़ जस्ट अ नंबर। अभी आपने इतनी बातें सुनी हैं, एज इज़ जस्ट अ नंबर। यू नो कि आप कितने देर तक अपने बॉडी को सस्टेन कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट यू नो दैट माइंड सेट इफ़ यू वांट टू गेट इनटू इट। तो मुझे नहीं लगता है कि उनका लास्ट वर्ल्ड कप है, बट आई थिंक कल का मैच जो है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। आगे की बातें तो आगे होंगी, बट कल मुझे लगता है कि ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण गेम है। जैसे हम जिस दिन वर्ल्ड कप का मैच खेलने जा रहे थे तो हमारे कोच ने सबसे छोटी स्पीच दी थी उस दिन कि अब तक आप जिसके लिए तैयार हो रहे थे वो दिन आ गया है, बस उतना ही बोला था। नाउ जस्ट गो आउट एंड डू व्हाट यू कैन टू गेट दैट ट्रॉफी इन योर हैंड एंड नो प्रेशर व्हाट्सोएवर एंड मेक श्योर यू एंजॉय दिस मोमेंट। शायद ये मोमेंट दोबारा नहीं आएगी ज़िंदगी में। सो वो सब खिलाड़ियों को मैं ये कहना चाहूँगा, प्रेशर है बट मेक श्योर यू एंजॉय द मोमेंट, यू नो। और जब आप देखोगे पूरी कंट्री आपके लिए दुआ कर रही है, पूरी कंट्री साथ चल रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल मैच के बाद पूरे भारत में जश्न का माहौल है। 1983 का वर्ल्ड कप जिस तरीके के लिए वाटरशेड मोमेंट था, वैसे ही कल का दिन अगर सक्सेसफुल रहा तो आपको भरोसा है कि वुमेन्स स्पोर्ट्स के लिए, ना बस क्रिकेट के लिए, वाटरशेड मोमेंट हो सकता है इंडिया की हिस्ट्री में? बिल्कुल। देखिए, जब आप जीतते हैं ना तो आप बहुत लोगों के लिए एक उदाहरण बनते हो। अब मैं जब क्रिकेट खेलनी शुरू करी थी, मैंने हमेशा कपिल पाजी के हाथ में वो ट्रॉफ़ी देख के शुरू करी थी कि काश एक दिन ऐसा दिन आएगा कि जिस दिन ट्रॉफ़ी हमारे हाथ में रहेगी। आज हमारी वुमेन क्रिकेट के सामने उनके पास ये बहुत बड़ा मौका है कि आने वाली जनरेशन के लिए मार्गदर्शन बनने का, और वो ऑलरेडी जिस लेवल पे बनी हुई हैं मार्गदर्शन, उससे भी और ऊपर उठ के एक बड़ा मार्गदर्शन बन सकती हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि कल वर्ल्ड कप जीतने के बाद और सारी जो हमारे देश की बच्चियां हैं इस गेम को खेलना शुरू करेंगी, स्पोर्ट्स को लेना शुरू करेंगी, अपने करियर स्पोर्ट्स में बनाएंगी। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मैच है, न उन 11 खिलाड़ियों के लिए पर मुझे लगता है पूरे भारत के लिए, क्योंकि आने वाले जो समय हैं वो बहुत कुछ तय करता है कि आप जब जीतते हो तो आपको लीडर्स मिलते हैं, तो हम आप उनके फुल जो पैरों के पचनों पे चल के ना आप उनकी तरह बनना चाहते हैं। ठीक है जी। Well, I was extremely honored to be a part of this campaign, and also that I've been called Fit India icon. I feel the positivity in the room was very palpable. Just the good work that's been happening because the Fit India campaign is there for everyone to see, and I'm very, very honored that I am a part of it as well, because I'm very happy with the way we're giving importance to fitness and how it's becoming a culture in our country, and I hope this campaign just keeps growing and keeps blooming. Yes. You yourself are a very avid cricket follower. Probably a watershed moment in India's cricket history is waiting us 24 hours from now. As a fan, how do you feel right now? As a fan, my tears didn't stop after the semi-finals, after watching what Jemimah Rodrigues and what Harmanpreet did, what Richa Ghosh did. Women's cricket has come a long, long, long way, because I used to play when I was in school, and
there were very few female cricketers. From there to see it in the big stage at the DY Patil with a packed auditorium, it just feels very overwhelming. I couldn't control my tears, and hopefully tomorrow I will be there at the DY Patil after shoot. I'm doing a film, so after shoot I'll go there and hopefully see our girls lift that trophy up. Thank you, thank you. You know, first of all, I really want to congratulate the entire ministry for such a strong initiative. I personally really believe that fitness, having a sound mind, being healthy is extremely important, because it's not just about looking good. You know, it really translates and filters into every single part of your life. And it's a very nice initiative to have a lot of people from across quarters to come and talk about it, because that's how you create awareness. So a lot of love for Modi ji for you know, putting yoga on the map. It's a big part of my life, and for Mansukh ji to take this initiative forward for the youth, and just really happy and very, very honored to be a part of this evening. Thank you. सबसे पहले मैं एशियन यूथ गेम्स में भाग लेने वाले सभी एथलीट को अभिनंदन करता हूँ। एशियन यूथ गेम्स में भारत को 48 मेडल मिले और एशिया में 6 पोजीशन पर हम मेडल टैली में आए। उसके पहले 2009 में हमें 11 मेडल मिले थे। 2013 एशियन गेम्स में हमें 13 मेडल मिले थे, और इस बार हमारे यंग एथलीट ने कमाल करी और 48 मेडल के साथ एशिया में 6 रैंक से इंडिया का मान और सम्मान बढ़ाने वाले सभी यूथ एथलीट्स को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपने सर एक बात की, यहाँ पे इंडस्ट्री प्लेयर्स, स्टेक होल्डर्स की जो सुझाव मांगे हैं, उस पर किस प्रकार से मंत्रालय जो है काम करेगा जारी आगे परफॉर्मेंस भी और अच्छी होगी। आज मुंबई में आयोजित फिटनेस एंड वेलनेस कॉन्क्लेव में फिटनेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लोग थे, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लोग थे, न्यूट्रिशंस भी थे और देश के रिनाउंड एथलीट्स भी थे। यानी कि फिटनेस का 360 डिग्री हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आने वाले दिनों में देश में फिट इंडिया मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाएं, देश के नागरिक फिट कैसे रहे और फिटनेस के आधार पर वेलनेस को कैसे प्रमोट करें, इस दिशा में डिस्कस करा। स्वाभाविक है, जब डिस्कस होता है, सुझाव आता है, इस सुझाव के आधार पर आने वाले दिनों में एक व्यापक तौर पर फिटनेस एंड वेलनेस पर काम करा जाएगा। सर, कल चूंकि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का फाइनल है, सभी शुभकामना दे रहे हैं, आप उसको किस प्रकार से देखते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मेरी वुमेन क्रिकेट टीम को अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस करा है और आने वाले दिनों में भी हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम बेस्ट परफॉर्मेंस करती रहेगी। मेरी ओर से शुभकामनाएं।